فوج کے خلاف وہ بات کر رہے تھے. یہ تو بہت پہلے سے شروع تھا. وہ پہلے سے ہی وہ پارٹی کے لیڈر کہہ رہے تھے. گجرانوالہ کا جلسے میں آپ موجود تھے, کراچی کے جلسے موجود تھے. پہلے کیوں نہیں کیا؟ لوگ اس کی آپ کے اس بیانیے کو نہیں مان رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں جو کچھ ہوا اصل وجہ ہوا. بتائیں گا. یہ جہاں تک گجرانوالے کے جلسے کا تعلق ہے, کراچی کے جلسے کا تعلق ہے, وہاں پر ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں لیا گیا تھا, ڈی جی آئی ایس آئی کا نام نہیں لیا گیا تھا. وہاں پر فوج کے سپاہیوں سے یا جونیئر رینک اینڈ فائل سے اپیل نہیں کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کوئی حکم ہے تو اس کو پہلے چیک کریں کہ وہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے. یہ باتیں پہلے نہیں کی گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی بات کی گئی تھی. میرے والی نیریٹو پہ آج بلاول بھٹو بھی یہی بات کر رہا ہے, مولانا بھی یہی بات کر رہا ہے, بلکہ پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑنے والی ہے اسی بات کے اوپر کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس میں فوج کے عہدیدار, اس میں سول کے سینئر عہدیدار, اس میں فارن سروس کے عہدیدار, اس میں ڈپلومیٹس, یہ سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں جو پبلک اوپینین بناتے ہیں اور وہی انفلوئنس کرتے ہیں ملکی فیصلوں کو. اور اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں ہے, اور فوج جہاں تک ہمارے انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے, فوج ہم آرمی کو کہتے ہیں, فوج آرمی نہیں ہے, فوج ایئر فورس بھی ہے, فوج نیوی بھی ہے, فوج سول آرم فورسز بھی ہیں. تو یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, کوئی اور ریزن, میں نے ریزن آپ کے سامنے بتا دیے. میں نے بتا دیا کہ نواب صاحب کے اٹینڈ نہ کرنے کی بات ایسی تھی, اگر وہ شاید کوئی بات چیت کی جاتی تو شاید وہ اپنا فیصلہ واپس لیتے, اور وہ وجہ نہیں تھی اس کی. اور وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ بھی وجہ نہیں تھی. وہ ممکن ہے وہ ریورس کیے جاتے, اگر ریورس کیے جاتے تو کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن یہ irreversible تھا یہ بات جو کی گئی, اس وجہ سے میں نے جنرل صاحب, پاکستان سمیت پوری جو امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں ادھر جو ہے نا افواج جو ہے نا سیاست میں ان کا بس مداخلت جو ہے نا فریضہ ہے, آپ سمجھیں. تو جب وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ اب لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ غیر قانونی کام کرتے ہیں, اور اس کو روکنے کا اور کیا طریقہ ہے کہ یہ نہیں بتایا جائے کہ بھائی جب کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی حکم دیتا ہے اس کو نہیں مانا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں. طریقہ یہ ہے کہ آرمی چیف کمانڈ کرتا ہے آرم فورسز کی یا آرمی کی کمانڈ کرتا ہے, اور جو کہنا ہے اس کو کہہ دے, بجائے اس کے کہ انڈر کمانڈ کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی بات نہ مانیں. یہی آرمی چیف میاں نواز شریف صاحب کے اپوائنٹی ہیں. اس وقت میں کیبنٹ میں تھا, مجھ سے پوچھا نہیں, میرے یہ یونٹ کے آدمی ہیں, میں جانتا ہوں ان کو. اس سے پہلے والے چیف کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا. ہر ایک کے ساتھ ان کی ڈس ایگریمنٹ ہوتی رہی ہے, لیکن جہاں تک قانونی اور غیر قانونی بات کا تعلق ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ فوج غیر قانونی کام کرے. میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کروں گا کہ فوج غیر آئینی بات کرے. میں اس کے خلاف ہوں. میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا کہ فوج الیکشن میں مداخلت کرے یا دائیں کرے یا بائیں کرے. یہ میری رائے نہیں ہے. جو میرا نیریٹو ہے, میری نیریٹو یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کی کہ ایک چیز کو کوشچن کر لینا اس کا طریقہ نہیں ہے, وہ غلط ہے. وہ اس میں بغاوت ہو جاتا ہے. اس میں ممکن ہے کوئی بات نہ مانے اور پھر اس کے نتیجے بغاوت کی صورت میں نکلیں, فوج آپس میں ٹکرائے, کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو جائے, یہ چیز ہے. دا ایونٹ نا کلمرک پیندیز گوڑا پریس کانفرنس کے نا دا ایونٹ نا اینو والا انت مری داسو تو انت یہ تو کرنے ایونٹ نا پانی گٹی نا صافی کرنا پانی گٹی دا ارٹے کوریج تنین کرنے کپس ہے نا داسو کرنے کی چونی تھا نا. سوال کے صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ ایک اہم موڑ پہ پہنچ چکی ہے. یار آپ دیکھیں اسی پی ڈی ایم کو کمزور کرنے کے لیے اس نے آج یہ جو آپ نے اجو یہ دیکھیں آج جو ہم نے یہ ایونٹ کیے, یہ سارے صحافی بھائی بول رہے تھے آقا یہ کل ہو جائے گا, پھر تفصیلاً کل یا پرسوں پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آج بتا دیں کہ کتنے لوگ
मुस्ताफी हुए तादाद अगर बता दी जाए? देखें आप, ये सारे सीनियर वर्कर हैं और ये सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिविजनल मकुरान, सारे ये मुझे कोई 20 के करीब हमारे लोग आए हुए थे जिन्होंने कंफर्म किया हुआ था आने के लिए। जमघटा इतना ज्यादा था कि हर एक को मैं पहचान नहीं सका। पहचान तो जानता हूँ, मकसद है कि लेकिन ये बता देना कि कौन आया और कौन नहीं आया। कोयटा के सारे कंफर्म आप तादाद नहीं बता रहे हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी नहीं, बहुत आए हैं ना, उधर नीचे भी बहुत बैठे थे। मैं पहचानता हूँ ना, मैं पहचानता हूँ, मुझसे पूछे। डिस्ट्रिक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, 34 के 34 आए, सदर सिटी डिवीजन के भी आए हैं, सिटी के आए हैं, डिवीजन के आए हैं, सारे यहाँ ये सब खड़े हैं, ये सब ये औदरामन है, ये सब ये वो क्यों मुझसे उसका मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा, किसी के बाप के वोट तक तो नहीं है। मैं मेरे यहाँ बलूचिस्तान के आप मौरूजी हालत को तो समझते हैं, आप बलूचिस्तान के मौरूजी हालत नवाज शरीफ बाद में जो है आप किसी और को खड़ा करके वो जीत के दिखा दे, फिर उसके बाद हम तो जीते हैं अपने शेरों के मुंह से, जो है हमने वो जो है अपना सीट जो है निकाले हैं, हमारे घर के हैं सीट, ये जहरी और शहीद सिकंदराबाद वाले मेरे घर के अपनी सीट है। मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा, अगर मेरे लोगों ने कहा कि आप दें इस्तीफा दूंगा, नहीं कहा तो मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अपने ज़ाती हैसियत में बीइंग चीफ ऑफ जालावन में जीत के आया हूँ। मैंने बताया आप कब तक इम्कान है आपका अपना ऐलान करेंगे मुशावरत के बाद? सियासी वाबस्तगी कहीं आप और ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब फिलहाल हम मुशावरत करेंगे अपने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, जनरल साहब का बहुत बड़ा हल्का अहबाब है, हम सब जो है वो एक मुशावरत करेंगे, काफ़ी वो करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। जल्दी तो नहीं है हमें तो जी। आपकी स्पीच के बाद अगर मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया आपको डिसीट करने से पहले, तो फिर क्या कर ले उनकी वो है, ये भी ख्वाहिश पूरी कर ले अपनी। अगर मैं डिसीट हो गया, मैं जाके दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, मैं दिखा दूंगा कि लोग मुस्लिम लीग नून के साथ है मेरे साथ। जनरल साहब, आपने इल्जाम लगाया जमीयत पे कि जब नवाब साहब को सीट से हटाया गया वज़ारत आला से, तो जमीयत के साथ थी, हालांकि आपके अपने मुस्लिम लीगी जी उसमें भी पेश थे, आपने उन लोगों का नाम नहीं मुस्लिम लीगियों का लेंगे, लेकिन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है बुख्ती साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके दस्तखत थे, जमीयत के 4 आदमियों के दस्तखत थे। अब मेरे पास है मिनिस्टर भी थे, व्हाट्सएप पे है जन साहब। नहीं नवाब साहब, जो गिला था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका आपको। गिला मेरा ये था कि 4 आदमियों ने यहाँ दस्तखत किए और 4 वहाँ पर फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया, उनको फेडरल कैबिनेट से नहीं निकाला गया। यहाँ पर इस गवर्नमेंट को गिराया जा रहा था और वो गवर्नमेंट में मजे ले रहे थे। जाम साहब भी मजे ले रहे थे और मौलाना साहब भी मजे ले रहे थे। न सिर्फ उन्होंने मजे उस वक्त ले रहे थे जब नवाब साहब ने रिजाइन किया, उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। नहीं जनरल साहब, एक बात बताऊं आपको जी, अब आप बैठे हुए थे, मुझे तो उसने नवाज शरीफ को मैंने फोन किया, नवाज शरीफ ने मुझे वो नहीं दिया, फिर शाहिद खाकन अब्बासी को मैंने फ़ोन किया। आप आज जो वो कर रहे इतने क्वेश्चन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, मैं आपको हक़ाइक़ बताऊंगा। मुझे तो शाहिद खाकन अब्बासी ने खुद कहा कि आप रात को वो आया था, दूसरे दिन मैंने कहा अपने हालात देखे, कहते हैं हालात देखे, मैंने कहा क्या कहें, कहते आप रिजाइन करें। शायद मैं बता खत्म के इंसान में उसे मैं नफरत सवाल हाँ जी नई जमात क्या मकसद है भाई मेरे? जहाँ तक नई जमात बनाने न बनाने का ताल्लुक है, जहाँ पर तक किसी और पार्टी में शामिल होने का ताल्लुक है, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह नवाब साहब ने कहा, ये बच्चों का खेल नहीं है और न एक इंडिविजुअल का फैसला है। इंडिविजुअल जब फैसले करते हैं तो वो फैसले उनके सर पे जाके करते हैं। तो आपको बता रहे हैं और लोग हैं नवाज शरीफ के, आप मेरी जगह होते, कोई और होता, आप अपने ये इस तरह ये अथॉरिटी से ये चल रहा है। ये तो नवाज शरीफ ने वो हमसे काम किया है, आपको ला के चौराहे पे जो है आपके कपड़े उतार के जो है आपको छोड़ दे, भाई आप चले जाए। कोई अपने लोगों से इस तरह कोई वो करता है? उसके बाद जब वो उन्होंने वो किया है, न जनरल साहब से उन्होंने रब्ता किया है, न मुझसे रब्ता किया है,
नवाज शरीफ को 13 दिन हुए, आज 13वां दिन है और 14 दिन है, 14 दिन। 24 से बात करें, 24 से शुरू किया। ये अहमियत है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान की खवातीन की ये इज्जत है जो मैंने बताई आपको। यानी 14 दिन हुए, इनमें से एक भी आदमी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। और यानी बलूचिस्तान की अहमियत की मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लीग नून की नज़रों में। कम अज़ कम एक फैसला था, मैंने ऐलान कर दिया था उसी दिन, कोई न कोई कम एफर्ट कर लेता है कि भाई जौन साहब इसके ऊपर आप देखेंगे। नवाब साहब अपने न उनसे बात हुई है, न मुझसे बात हुई है। वो बलूचिस्तान को कुछ नहीं समझते, हम मुस्लिम लीग को कुछ नहीं समझते। हम मुस्लिम लीग को मियां साहब जो थे वो तो बेवफा निकले। आपकी और नवाब साहब की सियासी वसीयत क्या कहती है कि आसिफ अली सरदारी या बिलावल भुट्टो सरदारी जो है वो वफादार निकलेंगे या वो भी नहीं, किसने उनका नाम दिया? ये नहीं, वो इस तरह करो ना, ये सवाल इस तरह से है कि पूरी दुनिया के बारे में ये पूछो कि वो वफादार होंगे कि नहीं होंगे। भाई ये देखने वाली बात है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है। और अभी तक अगर कोई बात हो जाती है तो बात की बात है। ये इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने तो साबित कर दिया आपके सामने उन्होंने बात। इन्होंने तो हमें बीच चौराहे में हमें लाके जो है हमारे कपड़े उतार के जो है वो करता है बलूचिस्तान का। या ये बताओ कि अपनी गलत बात की। माशरा आपको ये इजाजत देता है? मैं तो अपने बच्चों से, साफियों से, आप लोगों से भी चीफ मिनिस्टर रहा हूँ या बीइंग चीफ ऑफ जालावान, ये मेरा फर्स्ट कजन है। हम तो रिवायतों के पासदार हैं, हम तो वो करते हैं। नवाब बुगटी के साथ क्या किया 90 में, 1 मिनट में बता रहा हूँ। नवाब बुगटी के साथ क्या किया नवाज शरीफ ने? ताज जमाली को आज मर गया है, उसने खुद बोला है कि मुझे उसने बोला था, उसने नवाज शरीफ ने बोला था कि आप वो हो जाए, चूँकि नवाब बुगटी गुलाम ईसा खान के उसमें है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता है नवाज शरीफ को बनाने के लिए, तो लिहाजा तुम खड़े हो जाओ, मैं अपने बंदे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बाकी वो कर दूंगा। हम तो आए थे अपोजिशन में बैठने के लिए, हम तो आए थे, पीएनपी के 6 मेंबरान थे, बाकी दूसरे मेंबरान थे। जब ताज जमाली उसमें कूद पड़ा, आखिरी आयाम में ताज जमाली ने हमें बताया, जब ताज जमाली कूद पड़ा और बाद में जो है ताज जमाली के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात भी सही नहीं रहे और उसकी वजह से, तो ताज जमाली ने अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बताया कि मुझे तो नवाज शरीफ ने कहा था कि जी अब खड़े हो जाए नवाब बुगटी के खिलाफ। अगर वो नहीं खड़े होते, उस वक्त हमारी 40 की हाउस थी, 14 नवाज शरीफ उसके नवाब अकबर बुगटी के वो थे, वोट थे, 7 आदमी ये थे, 14 और 7 कितने बनते हैं? 21 आदमी तो आपको चाहिए थी। बाकी इधर उधर से जो भी हुकूमत बनाता है, 1-2 आज़ाद, 2-3 आज़ाद थे, वो भी आ जाते, तो मज़े से नवाब बुगटी जो है वो आ जाते। ताज जमाली कहते हैं मुझे गुंजाइश था कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ जाता या वो होता, तो मुझे तो उसके खिलाफ जो है उसने खड़ा किया था, नवाब बुगटी के खिलाफ 90 में जो है उसने नवाज शरीफ ने। आपने अली मदद जतक से मुलाकात की है, आपने अली मदद जतक से मुलाकात की है, क्या पार्टी पेशकश की गई है? चेयरमैन सेनेट की मुलाकात के बाद ये तासुर पाया जा रहा है कि आप बाप पार्टी में ये जो आप उनका ग्रुप है वो शामिल होगा, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल अभी मगरिब का टाइम है, इस हवाले से वो बिल्कुल बात नहीं हुई। वो शरीफ आदमी है, बलूचिस्तान का आदमी है, वो रेवेंट का रहने वाला नहीं है, जाति उम्रा का रहने वाला नहीं है, वो स्पेशली आया है, इसीलिए तो मैं कल लेट हुआ और वो वहाँ से स्पेशल आया मेरे फातिहा के लिए। आपने तस्वीर नहीं देखे कि मैं उसके साथ फातिहा पढ़ रहा हूँ और मगरिब का टाइम है, इसमें कोई सियासत पे हमने कोई बात नहीं की। ऐसी जर्नली ठीक है, वैसे वो हो रहा है, वो बात की है, लेकिन सियासत पे इस पे हमने कोई बात नहीं की है। अभी कोई मेरे फातिहा पे भी आ जाए, उस पर भी कोई एतराज़ उठा ले कि भाई वो कर रहे, आप देख लिए, आप सोशल मीडिया में देख लियो, जो है वो फातिहा करने के लिए आया था और हार्डली मैंने भी आना था, चूँकि अल्लाह ने हमें बचाया, कल जहाज़ हमारा क्रैश होते बचाए, तो फिर मैं बाय रोड आया हूँ, तो फिर मैंने भी आना था, वो भी हार्डली आधा घंटा में बैठा, 1 कप चाय का पी के चले गए। जनरल साहब, क्या अली मदद जतक की जानिब से कोई पेशकश की गई, क्योंकि वो पूरी उम्मीद है आपके जाने से? देखिए जी, बात यह है कि जब कोई अवेलेबल होता है तो उसको सारे अप्रोच करते हैं। अली मदद जतक पैगाम ले आया था अपने चेयरमैन का, अपनी पार्टी का, हमने उनकी बात सुनी
اور جس طرح سے شریف آدمی ایک دوسرے کی بات سنتا ہے اور ہم نے بات سنی اور اس کو بتایا کہ ہم غور کریں گے دیکھیں گے. اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ بلوچستان میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف خدا کرے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن ہماری مزاج کو